यहाँ पे we will see the cross product in today's lecture. We'll see the cross product और vector product. कल हमने देखा कि vector when multiplied by vector, stop everything, stop, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, relax, just pay attention. When vector into vector will give you the scalar quantity, it is called as dot product. इसलिए इसको बीच में डॉट होता है, वेक्टर डॉट वेक्टर. बट इफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज गिविंग यू अ वेक्टर क्वांटिटी, देन वी डिनोट इट बाय क्रॉस. वी कॉल इट एज द क्रॉस प्रोडक्ट, या प्यार से इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट. द रिजल्टिंग फिजिकल क्वांटिटी विल बी वेक्टर. और ये उसका फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? पी क्यू कॉस थीटा था, ये पी क्यू साइन थीटा था. पी क्यू कॉस थीटा था, तो ये है पी क्यू. पी बार क्रॉस क्यू बार इज पी क्यू साइन थीटा. लेकिन इसके साथ यहां पर एडिशन में आ गया है यू कैप. यू कैप, कैप टोपी पहनाया तो ये यूनिट वेक्टर होता है. यू कैप इट्स ए यूनिट वेक्टर. ठीक है. सो पी क्यू sin theta is the magnitude of this cross product. It is modulus of p bar cross q bar. What is modulus of p bar cross q bar? It is pq sin theta. Understood? It is giving me the magnitude, and this u cap is giving me the direction. Is that clear? And this u cap is given by, ये जो u cap है, this u cap is given by the right hand rule. It is given by right hand rule or right hand screw rule. कैसा होता है right hand screw rule? देखिए ये है plane. This is a plane which is containing p bar and q bar. ये है plane which is containing p bar and q bar. Then pq sin theta तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर curl right hand rule क्या बोलता है? Curl the fingers of your right hand. Curl the fingers of your right hand going from the first vector to the second vector. Going from the first vector to the second vector. ऐसे. The outstretched thumb will give you the direction of the cross product या direction of u cap. Outstretched thumb, right hand के रूल समझ में आ गया? Curl the fingers of your right hand from the first vector to second vector, p bar से q bar. So this is giving me the direction of p bar cross q bar. Is this clear to you all? Did you understand that? समझ में आ गया? So this is the direction of p bar cross q bar और ये है unit vector in that direction. वही अगर मैं क्यू बार क्रॉस पी बार चाहिए मुझे, फर्स्ट वेक्टर इज क्यू बार एंड सेकंड वेक्टर इज पी बार. सो कर्ल इट फ्रॉम क्यू बार टू पी बार, क्यू बार टू पी बार, क्यू बार टू पी बार, ऐसे. इज दैट क्लियर? सो इफ वी कर्ल इट फ्रॉम क्यू बार टू पी बार, तो द क्यू बार क्रॉस पी बार इज डाउनवर्ड. समझ में आ गया? क्यू बार क्रॉस पी बार विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. Hello. So p bar cross q bar and q bar cross p bar, these are the vectors which are opposite to each other. We call this as opposite vectors. Is that understood? These are called as opposite vectors. Their magnitude is same as the direction is opposite. समझ में आया सबको ये? ठीक है. Any doubts about this? ठीक है. So ये है plane which is containing vectors p bar and q bar, और उस plane को perpendicular होंगे ये दोनों के दोनों vectors. एक ऊपर होगा एक नीचे होगा. I hope that is clear to you. ठीक है. Let us see the characteristics of the cross product. We'll see the characteristics. Characteristics of cross product. ठीक है. Let's see this one by one. The first one, अभी हमने देखा, क्या उल्टा पुल्टा चलेगा? I mean, can I say that p bar cross q bar and q bar cross p bar are they same? अरे नहीं सेम यार, अपोजिट है वो. अपोजिट है, सो नहीं चलेगा ये. That means it is not commutative. It is not
कॉम्यूटेटिव, उल्टा पुल्टा नहीं चलता है, ठीक है। सेकेंड, एनी डाउट्स अबाउट दिस? ओके, देन ए बार प्लस नहीं सॉरी बी बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार, अगर ऐसा है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो दिस इज नथिंग बट ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। सो इट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो ओबे करता है। इज दैट ओके? इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है। देन द थर्ड इज स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो पहला केस होगा इसमें से थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये मुझे बताइए कि व्हाट इज पी बार क्रॉस क्यू बार? इट इज गिवन बाय पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा इनटू यू कैप, बराबर है ना? व्हाट विल बी साइन थीटा इन दिस केस? साइन 0, साइन 0 इज 0, सो पी बार क्रॉस क्यू बार इज 0। समझ में आ गया क्या? 0 और 0 बार, समझ में आ गया? Similarly, if I'll take this as theta is equal to 180 degree, then that will give me sin theta is equal to 0. And what will be p bar cross q bar? pq again sin theta into u cap. Now that is also 0. समझ में आ गया? 0 या 0 बार बोल सकते हैं। So यहाँ पर देखिए ये दोनों वेक्टर्स they are what is the angle between the two vectors here? पहला वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर भी वैसा ही है, हाँ? और यहाँ पर पहला वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है। Is this clear? So what is the angle here? These are called as parallel. ये दोनों भी parallel है, लेकिन these are parallel vectors and these are anti-parallel vectors. These are anti-parallel vectors. Is this clear to you all? समझ में आ गया? ठीक है। सो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल है देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है या एंटी पैरेलल है देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। इज दिस क्लियर टू यू? अच्छा, जो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं उन्हें दोनों को भी कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल दिस एज? वी कॉल दिस एज कोलिनियर वेक्टर्स। ये दोनों जो है दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आया? ठीक है। तीसरा स्पेशल केस, अगर वो 90 डिग्री है, सी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड देन व्हाट विल बी पी बार क्रॉस क्यू बार? फॉर्मूला इज पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू, बोलिए, it is p q sin theta into u cap, so that is equal to p into q into u cap। समझ में आ गया? तो इसमें कोई ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। एनी डाउट्स अबाउट दैट? चलिए अगला, तो यही चीज मैं यूज करूंगा कि ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई एंड जे? आई कैप जे कैप, इसमें क्या एंगल होते हैं बता सकते हो प्लीज? हेलो, अगर ये जो मैंने ए वाला यूज किया कि आई कैप क्रॉस आई कैप, इज द एंगल बिटवीन देम 0? आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन और एक यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। कुछ नहीं करने का, सिर्फ ध्यान देने का, कुछ नहीं करने का। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, सो आई कैप एंड आई कैप, उसमें एंगल कितना होगा? आई कैप एंड आई कैप, व्हाट इज द एंगल? अरे 0 है यार, बोलो ना, 0 है ना, 4 बार पूछो, इसलिए बोला ध्यान दो सब लोग। सो अगर एंगल 0 होता है देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, सो व्हाट इज आई कैप क्रॉस आई कैप? 0, करेक्ट ना? And same is the case for j cap cross j cap, and same is the case for k cap cross k cap. Did you understand this? यार ये एक तो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये समझ में आ गई बात? अच्छा,
अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, जैसे कि आई क्रॉस जे, इज इट 90 डिग्री? इज इट 90 डिग्री? हेलो, आई विल कंसिडर हियर वन डायग्राम, ये वाला डायग्राम, आई विल कंसिडर दिस डायग्राम। अब गौर से देखिए, मुझे बताइए, राइट हैंड रूल भी यूज करना है मुझे यहाँ पे। आई हैव टू यूज द राइट हैंड रूल। क्या मिलेगा बताइए? आई क्रॉस जे, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम आई टू जे, क्या आएगा? यस प्लीज। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम आई टू जे, तो क्या मिलेगा तुमको? विल यू गेट देयर? के राइट हैंड से आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, ये रहेगा तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। यस और नो? हाँ, अभी मुझे आई क्रॉस जे लिखना है। आई क्रॉस जे, इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ द आई। आई इज अ यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। J is the unit vector along y direction. What is its magnitude? 1. What is the angle between I and J? 90. So can I write here cos of 90? Correct ना? सही है? I'll write here cos of 90. तो ये क्या बन जाएगा बताइए? अच्छा, ये मैंने cos of 90 लिख लिया into u cap। अगर यहाँ से राइट हैंड रूल से मुझे क्या डायरेक्शन मिल रहा है? राइट हैंड रूल से when I'll curl the vectors from I to J, it is giving me the unit vector in the perpendicular direction, and unit vector in the perpendicular direction is nothing but k. So can I say this is k? क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है p बार क्रॉस q बार इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। अच्छा, मुझे यहाँ पे साइन 90 लिखना पड़ेगा। दिस इज साइन पी क्यू साइन थीटा इंटू यू कैप, बराबर है क्या? दिस यू कैप इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। दिस इज p बार q बार, कर्ल देम फ्रॉम 1 to 2nd। दिस विल बी गिविंग मी द डायरेक्शन ऑफ यू कैप। यस और नो? यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दिस इज 1 is magnitude of I cap, 1 is magnitude of J cap into sine of 90 degree into K cap is the vector which we obtained by using the right hand rule. Yes or no? तो क्या आएगा आंसर बताइए? 1 into sin theta is also 1. So what will be I cross J? It is K. समझे? लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ये उल्टा नहीं चलता है। Therefore what will be J cross I? नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं ना, so it will be minus K. समझ में आ गया? Similarly, I'll say similarly, what will be J cross K? अब डायरेक्ट बताओ, I J K, तो J K I, समझे? And what will be K cross J? Minus I. अब I J K, so what will be K cross I is J, and what will be I cross K? Minus J. So in short, I'll remember this diagram. I'll remember this diagram. क्या डायग्राम बोलता है ये? ये बोलता है if you're going from I to J, I cross J is K, J cross K is I, and K cross I is J. So it will go like this. ये ऐसे घूमता रहेगा. Did you understand that? Okay, you can remember it this way. ठीक है? So ये हो गया हमारे और कुछ set of formulae. These are formulae. ये तो है ही। Is that clear? समझ में आया सबको? Similarly, now with the help of this, I'll find out what is the second formula of cross product. Second formula of cross product जैसे हमने dot product का, तो I'll say the next property is, this was characteristic number 3. Now I'm going for characteristic number 3. This was 3, right? Fourth.
I'll say let p bar is equal to, कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा p bar, it will be pxi plus pyj plus pzk. q bar is equal to qxi plus qyj plus qzk. समझे? रेडीमेड फॉर्मूला बताने जा रहा हूं इसका मैं, क्या है, p bar cross q bar is given by determinant I j k, this is px py pz qx qy qz, that's it. ये फॉर्मूला है. अब आपको ये फाइंड आउट करना आता है डिटरमिनेंट. गुड, विल सी इट व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. ठीक है. एंड द लास्ट वाला, द लास्ट थिंग कि लॉजिकली या उसका अगर ये एक पैरेललोग्राम है, if this is a parallelogram whose adjacent sides, this is p bar is one vector and this q bar is other vector, ठीक है. तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, area of parallelogram OACB, it is given by modulus of p bar cross q bar. Is that clear? It is given by modulus of p bar cross q bar. अच्छा, मुझे इसका अगर आधा एरिया चाहिए, मतलब इस ट्रायंगल का चाहिए, जैसे कि यहाँ पे, it will be half of modulus of p bar cross q bar. Did you understand that? Did you get that? इसमें और एक वेरिएशन है, समझिए कि ऐसा ही एक पैरेललोग्राम है, बिल्कुल ऐसा ही एक पैरेललोग्राम है. ठीक है. और इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करता हूं मैं. सिर्फ यहां पर वो एरोज नहीं है, these arrows are not there. ठीक है. ऐसा. देन वेयर इज द, ये जो वेक्टर्स कहां पर है, सो द वेक्टर्स दिस टाइम आर लाइक दिस. वन वेक्टर इज अलोंग दिस डायगोनल and the other vector is along this diagonal. समझे? So I would say this is p bar and this is q bar. Is that clear? Now the area of this, इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या इसको भी हम पैरेललोग्राम ही बोलेंगे, पैरेललोग्राम, whatever that, OACB or whatever, it is given by half of modulus of p bar cross q bar. क्या समझ में आ गया आपको? So I'll call this as 6b. This is the sixth property, 5b rather, 5b. Is that clear to all? ठीक है. So I'll say this is 5b. So अगर vectors are along the adjacent sides like this, then it is modulus of p bar cross q bar. Triangle है तो half of modulus of p bar cross q bar. And अगर the vectors are along the diagonals, then it is half modulus of p bar cross q bar. Well, these are all the characteristics that we should know.